हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो, अब तक हमने रेडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या पॉइंट्स कंप्लीट किए, एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। वो रिवीजन पार्ट में ध्यान में रखना कि कौन से पॉइंट कवर किए और वो वाले वीडियोस आपने देखे कि नहीं देखे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हमने जिसमें देखा है कि डेफिनेशन पार्ट, मतलब जो इंट्रोडक्शन में आता है डेफिनेशंस, वो क्लियर किए। सेकेंड में हमने देखा है रूल्स ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। देयर आर द सम रूल दैट वी हैव कवर्ड इन अ सेकेंड वीडियो। In the third video, we have seen some examples. After that, we have taken some more examples for the practice of our oxidation number calculation. Okay. After that, we have seen that how to find out or how to balance the oxidation, or we can say that redox reaction. How to balance the redox reaction by the two methods. In that, one method is that oxidation number method. In that, first method is oxidation number method. Okay, in that actually acidic and basic medium, that two reactions we have seen, means in the acidic medium as well as in the basic medium also we have balanced the reaction. As well as we started with the second method, that is the half reaction method. In that half reaction method we have completed only the balancing of reaction in the acidic medium. Okay, and last one remain, that is the basic medium, means how to balance the reaction in a basic medium, that we will discuss now. Now see here, in the basic medium, as we know that rules, if we consider how to balance the redox reaction, same rules are there. Which are the same rules? In that we can say that same rules means firstly write down the unbalanced reaction, second one write the oxidation number of all the elements, third step is, that means number of steps are there. If we will say something, then instead of that we will prefer to start the balancing of reaction. Okay, so if we consider the balancing of redox reaction in basic medium, it is similar to the acidic medium. Small difference is there. What is that? That small difference is that at the end, if H plus is present, then we have to add the same number of OH minus to the both side. Now see here, what is the example in today's reaction? Example is that SeO3 2 minus plus Cl2 SeO4 2 minus plus Cl minus. This example we are going to start in the basic medium. So for the balancing purpose, that is the one example. But listen carefully, how many examples we are taking, that is not important. What is important? Important thing is that your concept should be clear by me. Okay, so that's why. Now see, here we have completed our first step. What is that first step? Every time I am revising your steps also. First step, write the unbalanced equation. Second step, assign the oxidation number of all the atoms. Now see here, oxygen minus 2, chlorine which is present in its diatomic form or the molecular form. So its oxidation number will be 0. Now see here, oxygen again minus 2, chlorine. It is the anion because that chlorine carries the minus charge, so it is the anion. If any ion is there, then its oxidation number is that whatever charge present on that ion is its oxidation number. Now see, what is remain? That is the here selenium and here also selenium. That selenium belongs to oxygen group. Okay, so selenium 3 2s are minus 6, minus 6 देखो यहाँ पे x plus minus 6 equal to, here charge is there, so we have to take here minus 2. So x is equal to minus 2 plus 6. In this way x is equal to plus 4. So here oxidation number is plus 4. Now see second one, यहाँ पे देखो 4 2s are 8, 8 minus 2 6, means here oxidation number of selenium is plus 6. अब इस थर्ड स्टेप क्या है? Find out the oxidation and reduction and means reactions. Which elements or the ions or the molecules undergoes the oxidation or reduction, that we have to study here. Now see, whose oxidation number is changed, that first we will observe. Plus 4 plus 6 means here there is a change. Okay, so I am writing here like that only. See here. See. Next one, oxygen minus 2. Here also minus 2 means there is a no need to consider that oxygen. Second one, chlorine 0 minus 1 means oxidation number is changed. So we will write here like that.
Now see here, we have completed our third step also. Now, completed means not completed because 8 we have not written that increase in oxidation number, oxidation or reduction is there. Now see here, plus 4 to plus 6 means oxidation number is increase. So, increase in oxidation number, and as we know that if there is an increase in oxidation number, that is nothing but the oxidation. Okay. Now see second reaction, क्लोरीन 0 to -1. अभी कौन सा छोटा है, -1 या 0? -1, मतलब यहां से 0 to -1 हो गया, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, तो रिडक्शन रिएक्शन हो गई. क्लियर हो गया सबको? रूल्स फिर से देखो, अनबैलेंस रिएक्शन लिख दी, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिए और उसके बाद सिंपली वी found that which undergoes oxidation and reduction. Okay, now see fourth step. What is that fourth step? We have to balance the elements which are other than carbon, other than hydrogen and oxygen. But before going towards that step, we have to write the separate half of reaction. Reason is that because we want to balance this reaction by the half reaction method. So जो कुछ भी redox reaction उसको हमें हाफ करना पड़ेगा. वो हाफ किस में करना है? एक है जो ऑक्सीडेशन में और दूसरा है जो रिडक्शन में. ठीक है, अभी देखो हम उनको सेपरेट कर देते, इसलिए हम ऊपर लिख देंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है. ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन और सेकेंड पार्ट हम कर देते हैं जो कि रहेगा रिडक्शन का. ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी वो कौन सी थी? सेलेनियम वाली, मतलब SeO3 2 माइनस इट गिव्स SeO4 2 माइनस. ठीक है, ये वाली रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. अभी रिडक्शन वाली कौन सी थी? वो थी Cl2 गिव्स Cl माइनस. ठीक है, अभी कौन सी स्टेप करनी है? बैलेंस दी अदर एलिमेंट्स. ओके, अदर एलिमेंट्स, ये स्टेप यहाँ पे भी फॉलो की जाएगी. ठीक है, यहाँ पे देखो सेलेनियम विच आर अदर देन, हाँ वो इंपॉर्टेंट है, बैलेंस तो करने है पर विच आर अदर देन, बैलेंस दी अदर एलिमेंट्स देन दी कौन से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको छोड़ के हमें बाकी के एलिमेंट्स बैलेंस करने. ठीक है, अभी देखो बाकी के कौन से हैं, यहाँ पे सेलेनियम और ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन को तो कंसीडर नहीं करना है, मतलब कौन रह गया? सेलेनियम. अभी देखो लेफ्ट साइड को सेलेनियम कितना है? 1 है, राइट हैंड साइड को भी 1 है, मतलब वो सब क्या है तो बैलेंस्ड है. सो ये रिएक्शन आ जाएगी जैसी है वैसे की वैसे यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, समझ में आ गया? फिर एक बार वो देखो मैं क्या बोल रही हूँ. यहाँ पे जो हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मिल गई है उसको सिर्फ हमें क्या करना है, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कुछ भी एलिमेंट्स है, ठीक है, अदर देन हुज दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को साइड में रखे बाकी के लोगों को हमें बैलेंस करना है. इसलिए हमने सेलेनियम पे फोकस किया, पर लेफ्ट को भी और राइट को भी एक ही है, सो नो नीड टू बैलेंस इट. अभी देखो यहाँ पे ये स्टेप यहाँ पे भी बैलेंस करनी है, मतलब अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो बैलेंस करना है वो कौन रह गया? क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे आता पता नहीं है किसका, ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का भी. तो क्लोरीन देखो लेफ्ट साइड को कितने हैं? 2 है, यहाँ पे कितना है? सिर्फ 1 है. इसलिए क्या करना है हमें? इंसर्ट टू दी RHS. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ हमें 2 RHS को ऐड करना है. मतलब ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? देखो Cl2 इट गिव्स ट्वाइस Cl माइनस. हो गया. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो हमें क्या करना है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय पर एटम, वो देखना है कितना है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कितना चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर? +4 से चेंज हो गया है +6. ठीक है, मतलब कितने से चेंज हुआ? 2 से. ठीक है, +2. सो यहाँ पे नंबर ऑफ सेलेनियम कितना है? 1 ही है, मतलब नेट इंक्रीज इज इक्वल टू +2. अभी यहाँ पे देखेंगे,
यहाँ पे देखो क्या हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 टू माइनस हो गया, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय पर एटम। पर एटम कितने से हो गया, बाय -1। ठीक है, अभी देखो नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है, तो 2 है, इसलिए नेट डिक्रीज कितना होगा, देखो एक एटम से कितना हुआ और नेट डिक्रीज, ये मैं हर बार क्यों लिखती हूँ, देखो यहाँ पे पर एटम कितने से डिक्रीज हुआ वो देखना है, और नेट डिक्रीज में यहाँ पे जितने एटम्स रहेंगे उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, तो 2 है, इसलिए 2 और ये मल्टीप्लाइड बाय -1, सो आ गया -2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी इंक्रीज बाय 2 है, यहाँ पे भी डिक्रीज बाय 2 है, वो साइन तो प्लस और माइनस है, क्योंकि इंक्रीज होता है तो प्लस, डिक्रीज होता है तो माइनस, इसलिए पर नंबर क्या है, सेम है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज, नेट इंक्रीज एंड नेट डिक्रीज इज बैलेंस्ड। क्लियर टू एवरीवन? नाउ सी, अभी सेकेंड स्टेप, मतलब उसके बाद की सेकेंड स्टेप तो नहीं आएगी, क्योंकि सेकेंड स्टेप तो कब की हो गई। ठीक है, बीच में मतलब इसके बाद जब ये हमें नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज बैलेंस हो जाता है, तो नेक्स्ट वाली स्टेप कौन सी आती है, तो बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, यहां पे भी क्या करना है हमें, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, यहां पे देखो अभी ऑक्सीजन काउंट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन कितना है, इस साइड पे 3 है और इस साइड पे कितने हैं, 4 है। अभी लेस वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट वन। LHS को क्या है, तो लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, कितने से लेस है, लेस बाय 1। क्लियर हो गया, क्या क्या लिखा देखो मैंने, LHS और RHS कंसीडर किया, उसमें क्या है, LHS को लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, कितने से कम है, सिर्फ 1 से, इसलिए मैंने LHS को क्या लिख दिया, लेस बाय 1। अभी ये रिएक्शन देखो रिडक्शन वाली, इसमें क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन का कुछ है, कुछ भी नहीं, मतलब 0 ऑक्सीजन, इस साइड पे भी नो ऑक्सीजन, मतलब नो नीड टू बैलेंस। ओके, सो दैट रिएक्शन विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या करते, तो इसको ये रिएक्शन कैसे बैलेंस करते वो देखते हैं। ठीक है, अभी देखो यहां तक तो अपना करेक्ट आ गया। ठीक है, ये रिएक्शन भी यहां तक जैसे कि वैसे, सिर्फ 2 नंबर इंसर्ट हो गया है, क्योंकि एक साइड को 2 क्लोरीन थे, एक साइड को 1 ही क्लोरीन था, तो दोनों साइड में सेम नंबर करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया था ट्वाइस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, सो 1 कम है, मतलब एड 1 H2O टू दी, कौन से साइड पे करना पड़ेगा, जिस साइड पे कम ऑक्सीजन है उस साइड पे, इसलिए एड 1 H2O टू दी LHS। मतलब ये रिएक्शन कैसे आ जाएगी, देखो SeO3 2 माइनस प्लस 1 H2O, so I'm not writing that number 1 but H2O, it gives SeO4 2 माइनस। क्लियर हो गया सबको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, मतलब ये रिएक्शन जैसे कि वैसे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नो नीड टू बैलेंस दी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कौन रह गया, बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम्स। अभी हाइड्रोजन एटम्स कंसीडर करते समय हमें क्या करना है, फिर से काउंट करना है, लेफ्ट को कितने हाइड्रोजन है, राइट को कितने। अभी देखो इसमें कुछ हाइड्रोजन है, नहीं है, इस साइड पे मतलब इसमें H2O में है, कितने हाइड्रोजन है, 2, और राइट हैंड साइड को नो 1 हाइड्रोजन। ठीक है, नो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन। लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली है, ये वाली, यहाँ पे तो 0 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, मतलब ये हो गया लेस नंबर साइड। ठीक है, अभी लेस नंबर साइड जो है कितने से कम है, 2 से, सो लेस बाय 2, 2 हाइड्रोजन कम है RHS को, इसलिए हमें क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना है, देखो फिर एक बार बताती हूँ, ऑक्सीजन कम है तो जिस साइड को कम है, जितने कम है उतने ही H2 ऐड करने, और जब हाइड्रोजन बैलेंसिंग की बात आती है तो क्या करना है, हाइड्रोजन जिस साइड पे कम है, जितने कम है उतने ही हमें H प्लस ऐड करने, मतलब ऐड 2H प्लस, कौन से साइड पे करने, LHS या RHS, RHS को, ऐड 2H प्लस टू दी
RHS। हो गया, समझ में आ गया ना। अभी देखो नेक्स्ट वाला, ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, फिर देखो यहाँ पे ये रिएक्शन चेंज होके आ जाएगी SeO3 2- प्लस H2O, इट गिव्स SeO4 2- प्लस कितने H प्लस 2H प्लस 2H प्लस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो नो हाइड्रोजन एटम्स, सो दिस रिएक्शन विल रिमेन एज इट इज। हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्लस नहीं आएगा। O3 2- प्लस आ गया H2O, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे SeO4 2- प्लस आ गया 2H प्लस, और ये रिएक्शन कौन सी आ गई अपनी Cl2, इट गिव्स ट्वाइस Cl-। ठीक है। अभी देखो जितने H प्लस है बेसिक मीडियम, तो उसमें क्या करना होता है, बेसिक मीडियम में हमें नंबर ऑफ H प्लस जितने हैं उतने ही ऐड करने होते हैं OH- टू दी बोथ साइड। समझ में आ गया, शॉर्टकट में लिखा है, क्या लिखा है, अगर रिएक्शन बैलेंस करनी है बेसिक मीडियम में तो जितने H प्लस रिएक्शन में है उतने ही OH- हमें ऐड करने हैं दोनों साइड को। अभी देखो यहाँ पे SeO3 2- प्लस H2O, यहाँ पे देखो कितने H प्लस है 2, मतलब हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 2 OH- ऐड करने हैं। कौन से साइड पे, तो बोथ साइड, मतलब प्लस 2 OH- इट गिव्स SeO4 2- प्लस 2H प्लस 2 OH-। समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है H प्लस OH- क्या मिल जाता है, H2O। वैसे ही यहाँ पे हमें क्या लिखना है, तो ट्वाइस H2O, इसलिए रिएक्शन क्या आ जाएगी, SeO3 2- प्लस H2O प्लस 2 OH- इट गिव्स SeO4 2- प्लस ट्वाइस H2O। हो गया। अभी देखो लेफ्ट साइड को भी H2 है, राइट साइड को भी H2 है, तो एक H2O को कैंसिल हो जाएगा, तो एक H2O रह जाएगा। इसके हिसाब से रिएक्शन क्या आ जाएगी, SeO3 2- प्लस 2 OH- इट गिव्स SeO4 2- प्लस 1 H2O। अभी देखो चार्ज क्या है, यहाँ पे -2 मतलब -4 हो गया, यहाँ पे कितना है, तो -2 चार्ज है। अभी -4 बड़ा है या -2 बड़ा है, -2 बड़ा है, इसलिए हमने क्या किया था, इस साइड को अभी देखो इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने पड़ेंगे। कितने ऐड करने पड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन। सो ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू दी RHS। ठीक है। अभी RHS को अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वो वाली रिएक्शन। ठीक है। आपको बेसिक मीडियम वाला जो स्टेप्स था वो समझ में आ गया होगा, होप सो। नहीं आया हो तो आप बता सकते हो हमें। SeO3 2-, ठीक है, ये वाला स्टेप में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करके लिख रही हूँ, प्लस 2 OH- इट गिव्स SeO4 2- प्लस एक वाला H2O, उसमें ऐड कर दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसमें देखो जब चार्ज बैलेंस करना है, इसमें H प्लस है क्या, नहीं है, मतलब खाली कौन सी बैच जो स्टेप है वो रह जाती है, तो चार्ज बैलेंसिंग की। ठीक है। चार्ज बैलेंस करना है तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ चार्ज देखना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे LHS को। सो ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू दी LHS। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे तो ये रिएक्शन कैसे आ जाएगी, देखो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स ट्वाइस Cl-। अभी लास्ट स्टेप क्या है, जस्ट हमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, ये जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन मिली है और जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मिली है, उनको हमें सिंपली क्या करना है, तो ऐड करना है।
ठीक है। जब इनको ऐड किया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। अभी देखो हम करते हैं इनको एडिशन में। यहाँ पे ये वाली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आ गई अपनी। अभी क्या करते हैं तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख देते हैं। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स ट्वाइस Cl माइनस, ठीक है। अभी देखो SeO3 माइनस प्लस 2OH माइनस, लेफ्ट साइड कंप्लीट करना है मतलब प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, आप ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो या फाइनली लिखने के बाद भी कैंसिल कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगी यहाँ पे ही कैंसिल कर देने का, ठीक है। इसलिए मेरा हो गया यहाँ पे कैंसिलेशन, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगी। देखो अभी RHS को क्या रह गया, SeO4 माइनस प्लस H2O प्लस में क्या रह गया अभी अपना 2Cl minus. So in this way we can say that this is the balanced redox reaction in the basic medium. अभी फिर से काउंट करेंगे आयंस जो एटम्स आए हैं वो नंबर ऑफ एटम्स सेम है कि नहीं। देखो अभी रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड कौन से हैं, एक है सेलेनियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है क्लोरीन और उसके बाद हमें देखना है चार्ज, ठीक है। सेलेनियम इस साइड को एक है मतलब 1 1, ऑक्सीजन 3 + 2 5 हो गया रिएक्टेंट साइड, राइट हैंड साइड को 4 + 1 5 हो गया। देखो अभी हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है LHS को 2 हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड को, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं तो 2 क्लोरीन है, यहाँ पे कितने क्लोरीन है तो 2, मतलब हमारे एटम्स तो बैलेंस हो गए। अभी देखना क्या है तो चार्ज। अभी देखो इस साइड पे चार्ज क्या क्या है, ये सेलेनियम ट्राइऑक्साइड का -2, ये OH का -2, मतलब लेफ्ट साइड पे आ गया -4 चार्ज, ठीक है। अभी देखना है राइट हैंड साइड को भी -4 है कि नहीं। सेलेनियम टेट्राऑक्साइड उस पे है -2, क्लोरीन पे है -2, मतलब ये भी हो गया अपना -4। सो इन दिस वे नाउ फाइनली we have confirmed that reaction is balanced in the basic medium. Hope so हमारा जो ये टॉपिक स्टार्ट किया था रेडॉक्स रिएक्शन वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें हमने 1 by 1 ऐसे करके बहुत सारे बिट मतलब जो जितने भी टॉपिक में है उतने कवर कर लिए, और मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे अपना जो रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक है वो खत्म हो गया है। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। और हाँ, ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट करते करते जब आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल या बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के मिल जाएंगे तो प्लीज सॉल्व कर देना, या फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिए कि और एग्जांपल्स दो मैम तो नेक्स्ट वीडियो में खाली थोड़ा एग्जांपल्स वाला पार्ट में आपको दे दूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।